डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बताया था। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज नेक्स्ट थ्योरी आपको बताने जा रही हूँ, इकाइनोडर्म थ्योरी. The theory was given by Johannes Muller (1860) and is based on the comparative studies of larval stages of echinoderms and hemichordates. इकाइनोडर्म थ्योरी जो है वो जॉन्स मिलर द्वारा दी गई थी और यह इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स की लार्वल अवस्थाओं की कंपैरेटिव स्टडीज पर आधारित है. Echinoderm theory appears to the most possible one and deserves serious consideration. Echinoderm theory सबसे अधिक पॉसिबल थ्योरी है और इसकी तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. Echinoderms are radially symmetrical animals and show no typical chordate characters. Yet they seem to be most closely related to chordates. Echinoderms radially symmetrical animals होते हैं और इनमें कोई भी typical chordate characters नहीं होते, लेकिन फिर भी Echinoderms chordates के सबसे अधिक closely related हैं. The auricularia larva of echinoderms is a free-swimming bilaterally symmetrical larva and it very closely resembles the Tornaria larva of hemichordates. Echinoderms का auricularia larva एक free-swimming bilaterally symmetrical larva है तथा यह हेमिकॉर्डेट्स के टॉर्नेरिया लार्वा से काफी समानताएं रखता है. In both the cleavage of the zygote is indeterminate. दोनों में indeterminate प्रकार का क्लीवेज होता है zygote में. Both these larvae are ovoid with a complex looped band of cilia traversing 2/3 of the anterior surface. दोनों जो लार्वी हैं वो अंडाकार होते हैं. इन दोनों में शरीर के अग्र सतह की 2/3 हिस्से में सीलिया के कॉम्प्लेक्स लूप बैंड होते हैं. The mouth opens on the ventral side. माउथ जो है वेंट्रल साइड में खुलता है. The alimentary canal is complete and is differentiated into an esophagus, stomach, intestine and anus. The anus arises from the blastopore and is posterior. दोनों लार्वी में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और यह ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस में डिफरेंशिएटेड होती है. एनस ब्लास्टोपोर से अराइज होता है और यह पश्च होता है. मोर सिग्निफिकेंट resemblance between echinoderms and hemichordates lies in the origin and arrangement of coelomic cavities. सब इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स में सबसे अधिक सिग्निफिकेंट समानताएं इनके सिलोमिक कैविटीज के ओरिजिन तथा अरेंजमेंट में होती हैं. In the embryo of hemichordate, there are 5 body cavities. An unpaired anterior cavity which becomes the coelom of proboscis, a middle pair of cavities
which becomes the coeloms of the collar, and a posterior pair of cavities that become the coeloms of trunk. हेमिकॉर्डेट के एम्ब्रियो में 5 बॉडी कैविटीज होती हैं। एक अनपेयर्ड अग्र कैविटी या गुहा जो कि प्रोबोस्किस की सिलोम बनाती है। मध्य के एक जोड़ी कैविटीज जो कि कॉलर के सिलोम्स बनाती हैं तथा पोस्टीरियर कैविटीज का एक जोड़ी जो कि ट्रंक की सिलोम्स बनाती है। These 5 cavities are found in echinoderm larvae and in the embryonic stages of amphioxis. ये 5 body cavities echinoderm larvae तथा amphioxis के embryonic stages में भी मिलती हैं। In all these forms, the coelomic cavities are pinched off from the archenteron. This anterocolic method of coelom formation is not found in other invertebrates. ये सभी coelomic cavities की जो forms हैं वो archenteron से बनती हैं। इस coelom के इस तरह का जो मेथड है एंटीरोसिलोमिक मेथड वो दूसरे इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता। It is also seen that in the embryos of hemichordates and amphioxus, the mesoderm is formed from the paired coelomic pouches of the archenteron, as also in echinoderms. यह भी देखा गया है कि हेमिकॉर्डेट्स और एम्फियोक्सिस के एम्ब्रियोज में मेसोडर्म आर्केंट्रॉन से पेयर्ड सिलोमिक पाउचेस के रूप में बनते हैं। ऐसा ही इकाइनोडर्म्स में भी होता है। These resemblances of coelom and mesoderm are of greater phylogenetic significance. सिलोम तथा मेसोडर्म के ये समानताएं बहुत अधिक फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस की होती हैं। Thus, lower chordates and echinoderms show striking similarities in their development, and it is suggested that the evolution of ancestral chordate has taken place from the larvae of echinoderm-like animals. इस प्रकार लोअर कॉर्डेट्स तथा इकाइनोडर्म्स में बहुत अधिक इनके डेवलपमेंट में बहुत अधिक समानताएं होती हैं तथा यह सुझाव दिया गया है कि एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन इकाइनोडर्म के समान एनिमल्स के लार्वी से हुआ है। A series of changes may have taken place in the auricularia larva by which it changes into an ancestral chordate. Auricularia larva में कई चेंजेस या कई परिवर्तन होते हैं जिसके कारण यह एंसेस्ट्रल कॉर्डेट में बदल जाता है। This phylogenetic relationship is unquestionable and it appears reasonable that echinoderms and hemichordates arose from a common ancestor. Then hemichordates gave rise to chordates. ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अनक्वेश्चनेबल है यानी कि इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। एंड इट अपीयर्स रीजनेबल और यह
पता यह रीजनेबल लगता है कि इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स एक कॉमन एंसेस्टर या एक कॉमन पूर्वज से उत्पन्न हुए हों और उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स ने कॉर्डेट्स को दिया हो या कॉर्डेट्स बनाए हो. Besides the morphological and embryological evidences, biochemical and serological tests have shown a close relationship between hemichordates and some echinoderms. Morphological और embryological प्रमाणों के अतिरिक्त बायोकेमिकल तथा सीरोलॉजिकल परीक्षण या टेस्ट जो हैं वो हेमिकॉर्डेट्स और कुछ इकाइनोडर्म्स के मध्य क्लोज रिलेशनशिप को प्रदर्शित करते हैं. दी phosphogenes utilized in muscle contraction are similar in the groups. They are compounds of creatine and arginine, whereas the phosphogenes of the rest of the invertebrates are compounds of arginine only. मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रयुक्त होने वाले फॉस्फोजीन्स दोनों ग्रुप्स में सिमिलर होते हैं. ये क्रिएटिन और आर्जिनिन के कंपाउंड्स हैं, जबकि शेष बचे हुए या शेष इनवर्टिब्रेट्स में फॉस्फोजीन्स केवल आर्जिनिन के कंपाउंड होते हैं. बट टू मच emphasis cannot be laid on biochemical tests since some polychaetes also have creatine compounds in their phosphogenes. लेकिन इन बायोकेमिकल टेस्ट पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि कुछ पॉलीकीट्स में भी क्रिएटिन कंपाउंड्स होते हैं. क्रिएटिन उनके फॉस्फोजीन्स में क्रिएटिन कंपाउंड्स होते हैं. The discovery of fossil echinoderms called Chalcochordata from Ordovician period, that is for 50 million years ago, further confirms echinoderm ancestry of chordates. लगभग 450 मिलियन ईयर्स पहले जिस काल को ऑर्डोविशियन काल कहा जाता है, उस काल में फॉसिल इकाइनोडर्म्स की डिस्कवरी ये कंफर्म करती है कि कॉर्डेट्स इकाइनोडर्म से उत्पन्न हुए हैं. ये फॉसिल इकाइनोडर्म्स जो हैं वो कैल्सीकॉर्डेटा कहलाते हैं. Chalcochordates were asymmetrical animals which show affinities with both echinoderms and chordates, but their skeleton is made of calcium carbonate, whereas in vertebrates the bones are made up of hydrated calcium and phosphate. Chalcochordates asymmetrical animals थे जो कि इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों से एफिनिटीज दिखाते हैं, लेकिन उनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, जबकि वर्टिब्रेट्स में हाइड्रेटेड कैल्शियम तथा फॉस्फेट की बोन्स होती हैं. They had large pharynx with a series of gill slits, each covered with flaps for filter feeding, a small segmented body, and a post-anal tail. उनमें एक लार्ज फेरिंग्स था जिनमें कई सारे गिल स्लिट्स थे. हर गिल स्लिट्स फ्लैप से कवर्ड थे जिसके कारण फिल्टर फीडिंग हो सकती थी.
शरीर छोटा सेगमेंटेड था तथा एक पोस्ट एनल टेल उपस्थित थी। A perforated pharynx for filter feeding appears to have evolved in diverse groups of animals during Cambrian Ordovician periods when planktons were abundant in water. छिद्रित फेरिंग्स जो कि फिल्टर फीडिंग के समय प्रयुक्त होती है, यह यह एनिमल्स के विभिन्न ग्रुप्स में इवॉल्व हुई या जिनका इवोल्यूशन हुआ। यह इवोल्यूशन कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान हुआ, जबकि पानी में प्लैंक्टन्स की उपस्थिति ज्यादा होती है या प्लैंक्टन्स अधिक मात्रा में पाए जाते थे। Now combined theory. E.J.W. Barrington, 1965, combined all the above theories and proposed that the common ancestor of echinoderms and chordates was a sessile ciliary arm feeder that lived in the plankton-rich environment of the Cambrian. बैरिंगटन ने ऊपर दी हुई सभी थ्योरीज को आपस में कंबाइंड किया और यह बताया कि इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों के कॉमन एंसेस्टर हैं, कॉमन पूर्वज हैं, जो कि एक सेसाइल सिलियरी आर्म फीडर है। ये प्लैंक्टन रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो कि कैम्ब्रियन काल में थे। मॉडर्न क्रिनोइडिया, Pogonophora and pterobranch hemichordates evolved from a similar ancestor by retaining the original mode of feeding, perhaps because they continued to inhabit the same environment as occurred in the ancestral days. आधुनिक क्रिनोइडिया जो कि काइनोडर्मेटा की एक क्लास होती है, पोगोनोफोरा तथा टीरोब्रैंक हेमिकॉर्डेट की टीरोब्रैंक या जो ब्रांच है या जो क्लास है वो इवॉल्व फ्रॉम ए सिमिलर एंसेस्टर। ये सभी एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं और इनमें फीडिंग का जो ओरिजिनल प्रकार है, ओरिजिनल मोड है, वो बना हुआ है, क्योंकि बिकॉज परहैप्स दे कंटिन्यू टू इनहेबिट द सेम इन्वायरमेंट, क्योंकि ये लगातार एक ही तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं एज अकर्ड इन एंसेस्ट्रल, वही इन्वायरमेंट जो कि उनके पूर्वजों के समय था। हाउएवर फेरिंजियोट्रेमी यानी कि फेरिंग्स में परफोरेशन या छेदों का बनना विद गिल स्लिट्स, जिसके कारण से गिल स्लिट्स बनते हैं, must have evolved in a large number of groups at that time, which must have been much more superior method of food gathering by filtering water through pharynx as compared to ciliated arm feeding. इस समय ये गिल्स में जो छेद बनते हैं या गिल स्लिट्स बनते हैं, ये कई ग्रुप्स में इवॉल्व हुए, क्योंकि उस समय ये जो मेथड है फूड गैदरिंग का, जो फिल्टर फीडिंग वाला मेथड है, ये
अधिक सुपीरियर है इन कंपेयर टू सिलियरी आर्म फीडर। सिलियरी आर्म जो फीडिंग है वो जब इकाइनोडर्म्स में पाई जाती है, उसके बाद जैसे जैसे एनिमल्स इवॉल्व होते हैं उनमें फिल्टर फीडिंग मेथड पाया जाता है। फीडिंग का फिल्टर फीडिंग मेथड, फिल्टर फीडिंग मेथड उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनमें फेरिंग्स परफोरेटेड हो गई है, यानी कि फेरिंग्स में गिल स्लिट्स बन गए हैं। तब जब ये पानी फेरिंग्स में प्रवेश करता है तो फिल्टर्ड हो जाता है। गिल स्लिट्स की उपस्थिति के कारण, गिल स्लिट्स में जो सीलिया होते हैं उनके कारण ये यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। जबकि सिलेटेड आर्म फीडिंग मेथड जो है वो पुराना मेथड है, यानी कि पुराने ऐसे एनिमल्स जो कि पहले इवॉल्व हुए हैं उनमें पाया जाता है, यानी कि इकाइनोडर्म्स में हम सिलियरी आर्म फीडिंग को देखते हैं। Some time later, when the plankton population in water declined, free swimming tailed larvae of these urochordates did not metamorph and become a neotenic adult. Since free swimming mode was superior in food searching at a time of food scarcity. जब कुछ समय बाद जब प्लैंकटन पॉपुलेशन पानी में प्लैंकटन की पॉपुलेशन कम होने लगी, तब फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा जो है उन परिस्थितियों में जो कि यूरोकॉर्डेट्स के लार्वा थे वो मेटामॉर्फोस नहीं हो पाए और नियोटेनिक एडल्ट में बदल गए। जैसा कि हम जानते हैं नियोटेनी का मतलब जब लार्वा एडल्ट में, जब लार्वा मेटामॉर्फोसिस जिनमें नहीं हो, लार्वा खुद ही जनन की क्रिया करने लग जाए, तो यह जो प्रोसेस है वो नियोटेनी कहलाता है। तो अब यहाँ पर ये जो टेल्ड लार्वा थे यूरोकॉर्डेट्स के, वो उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ और वो खुद ही एडल्ट में बदल गए, मतलब बिना लार्वा बिना मेटामॉर्फोस हुए ही वो एडल्ट की तरह व्यवहार करने लगे। तो ऐसे नियोटेनिक एडल्ट्स जो हैं वो उनके बनने के कारण, क्योंकि उनको फूड गैदरिंग में दिक्कत हुई, क्योंकि वहां पर प्लैंकटन की पॉपुलेशन कम हो गई, तो उनको फ्री स्विमिंग जो उनकी अवस्था है, जो फ्री स्विमिंग मोड है वो ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि उस समय फूड स्कार्सिटी है, फूड की कमी है, तो फूड को सर्च करने के लिए इस मोड की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लार्वा तो फ्री स्विमिंग रहे, लेकिन वो जनन की क्रिया करने लगे, यानी कि नियोटेनी शो करने लगे। Cephalochordate-like ancestors evolved by perfection and expansion of chordate characters that were already present in the Ascidian tadpole larva. परफेक्शन और कॉर्डेट कैरेक्टर्स के परफेक्शन और एक्सपेंशन के कारण, जो कि एसिडियन टैडपोल लार्वा में पहले से ही उपस्थित थे, सिफेलोकॉर्डेट के समान एंसेस्टर्स इवॉल्व हो गए। We already have fossils of such primitive chordates, example Piceia gracilens from mid-Cambrian. इस तरह के फॉसिल्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स के जो फॉसिल्स हैं, हम उनको ज्ञात कर चुके हैं। जैसे उदाहरण पिकेया ग्रेसियलेंस, जो कि मिड कैम्ब्रियन पीरियड में हमें प्राप्त हुए हैं। तो इकाइनोडर्म थ्योरी हमें ये बताती है कि कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन इकाइनोडर्म्स के समान एनिमल्स से हुआ है। ये इकाइनोडर्म्स
या तो एनिमल्स हो सकते हैं या उनके लार्वा से भी इनकी उत्पत्ति हुई हो सकती है, क्योंकि ये देखा गया कि काइनोडर्म के लार्वी और हेमिकॉर्डेट्स के लार्वी जो है उनकी में स्ट्रक्चरली काफी समानताएं हैं। दी गैरस्टैंग थ्योरी। गैरस्टैंग proposed that the origin of chordates, which took place about 570 million years ago during the Precambrian period, must be from some deuterostomes. That is, animals in which the mouth is not formed from the blastopore of the early stages of development, and that includes echinoderms, hemichordates, and chordates. गैरस्टंग ने ये प्रपोज किया या ये बताया कि 570 मिलियन ईयर्स पहले जब कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ, उस समय प्री कैम्ब्रियन पीरियड था। प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान इनका ओरिजिन हुआ। यह ओरिजिन कुछ ड्यूटेरोस्टोम्स से हुआ। ड्यूटेरोस्टोम्स यानी कि कौन कौन से क्लासेस इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें माउथ ब्लास्टोपोर से नहीं बनता। The larvae of these animals have some similarities with the chordate body plan. इन एनिमल्स के लार्वी में कॉर्डेट बॉडी प्लान के समान कुछ समानताएं होती हैं, जैसे कि bilateral symmetry, a unidirectional digestive tract, and an arboreal and circumoral ciliated bands. Thus, it is believed that a deuterostome larva, perhaps the auricularia larva of echinoderms, would have resulted in the evolutionary line of chordates. इस प्रकार यह बिलीव किया गया कि ड्यूटेरोस्टोम लार्वा यानी कि इकाइनोडर्म्स का ऑरिकुलेरिया लार्वा उसके इवोल्यूशनरी लाइन के कारण या उसके इवोल्यूशन से कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई है। It is also just suggested by Gerstang that a modified auricularia larva probably became sexually mature, and this neotenic larva could be the ancestor from which the chordates evolved. Gerstang द्वारा यह भी सजेस्ट किया गया कि मॉडिफाइड ऑरिकुलेरिया लार्वा संभवतः सेक्सुअली मैच्योर हो गया और इस प्रकार यह नियोटेनिक लार्वा जो है उससे कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन हुआ, या ये जो नियोटेनिक लार्वा है ये कॉर्डेट्स के पूर्वज हैं। तो ये हमने डिफरेंट थ्योरीज देखी है जो कि समय समय पर डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा बताई गई और यह अनुमान लगाया गया कि कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई। तो इन सब को अगर हम ध्यान में रखें तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं या क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कंक्लूजन: The hypothetical chordate ancestry in the above light is as follows. Auricularia larva जो कि काइनोडर्म्स का होता है, उससे बना टॉर्नेरिया लार्वा जो कि हेमिकॉर्डेट्स का होता है, फिर उससे ट्यूनिकेट लार्वा जो कि एसिडियंस का है, फिर उससे बना एम्फिओक्सिस यानी कि सिफेलोकॉर्डेट्स, फिर ऑस्ट्रेकोडर्म्स यानी कि अर्लीस्ट फिशेस, या हम यूं कह सकते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। तो ये इस तरह से ऑरिकुलेरिया लार्वा मतलब ये सारे के सारे लार्वा हैं जो कि अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं? अर्लीस्ट फिशेस को।
सबसे पहले ऑरिकुलर लार्वा, उससे टॉर्नेरिया लार्वा, फिर ट्यूनिकेट लार्वा, देन एम्फिओक्सिस यानी कि प्रोटोकॉर्डेट्स बने और फिर उसके बाद अर्लीस्ट फिशेस. On the other hand, Romer, Beryl, Barrington, and Hyman suggested that echinoderms, hemichordates, and chordates arose from a common ancestor. जबकि दूसरी तरफ रोमर, बेरिल, बैरिंगटन, हाइमन इन सब ने ये सुझाया या ये सुझाव दिया कि काइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स तथा कॉर्डेट्स ये सभी एक कॉमन एंसेस्टर या एक कॉमन पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं. ये एक डायग्रामेटिक फैमिली ट्री है जो कि वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. तो सबसे पहले देखिए नीचे प्रिमिटिव सेसाइल आर्म फीडर. प्रिमिटिव सेसाइल आर्म फीडर से दो ब्रांचेस निकली. एक ने दिए टीरोब्रैंक्स यानी कि हेमिकॉर्डेट्स और दूसरी तरफ प्रिमिटिव इकाइनोडर्म्स. टीरोब्रैंक्स से फिर आगे चलकर टीरोब्रैंक्स से आर्म फीडिंग जो मेथड था वो चेंज हो गया किसमें, गिल फिल्टर फीडिंग में. तो आर्म फीडिंग से फिल्टर फीडिंग मोड बन गया. अब यहाँ से फिर दो ब्रांचेस में डिवीजन हुआ. एक तरफ एकॉर्न वर्म्स बन गए यानी कि हेमिकॉर्डेट्स बन गए और इन्हीं से दूसरी तरफ एंसेस्ट्रल ट्यूनिकेट्स बने जिनमें फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज होती है. फिर ये ट्यूनिकेट्स क्योंकि लार्वा है ये आगे चलकर एडल्ट बनाएंगे ट्यूनिकेट्स. दूसरी तरफ इन्हीं एंसेस्ट्रल ट्यूनिकेट्स से एडवांस्ड कॉर्डेट सेसाइल एडल्ट स्टेज बनी जो जिसमें सेसाइल स्टेज जो है वो खत्म हो गई. एडवांस्ड कॉर्डेट बने, एडल्ट स्टेज है इसमें और सेसाइल जो है वो स्टेज लॉस्ट हो गई. फिर इन कॉर्डेट से क्या बने, एक तरफ बने एम्फिओक्सिस और दूसरी तरफ फिर वर्टिब्रेट्स बने जिनमें फिल्टर फीडिंग स्टेज आई. ये फिल्टर फीडिंग स्टेज अभी प्रिमिटिव स्टेज है, प्रिमिटिव फिल्टर फीडिंग. उसके बाद फिर और ज्यादा आगे एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स बनते हैं. तो पहले इस तरह से हम देखते हैं कि कॉर्डेट्स जो हैं वो आर्म फीडर एनिमल से बने, प्रिमिटिव आर्म फीडर से ही अल्टीमेटली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लास्ट में चलकर कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई. तो इस प्रकार हमने देखा कि कॉर्डेट्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ होगा. उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है वो इकाइनोडर्म थ्योरी है जिससे पता चलता है कि इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और एडवांस्ड कॉर्डेट्स इन सब की उत्पत्ति एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है. थैंक यू.